Okay, so today we are going to discuss AC bridges, and we already discussed DC bridges previously. Okay, so in DC bridges there is a DC supply, but in AC bridges there is a AC supply. Okay, so initially we discussed AC bridges and DC bridges, why we required AC bridges, and what is the difference between AC and DC bridges like. So we already told for DC capacitor act as open circuit or infinite resistance. Okay, means capacitor block DC, and inductor act as short circuit or zero resistance, means it passes DC without any attenuation. Okay, so means in DC circuit we cannot discuss about capacitor and inductor. Okay, because if capacitor is there, then of course there is no any supply, current is zero because it act as a open circuit or having infinite resistance. So we obviously we know the resistance is infinite, and when we talking about the inductor in DC case, then we did not consider it as an inductor, we directly consider it as a wire having no resistance, because inductor act as a short circuit for the zero resistance and it passes DC without any attenuation, means like a wire having no resistance. Okay, so for DC circuit we cannot discuss about these two component, capacitor and inductor, but when we read for the AC supply, okay, or for harmonic supply or supply having frequencies, then R is considered as a resistance. Okay, because in R there is no any effect of frequencies, but when we discussed about capacitor, then for capacitor, capacitance Xc is equal to 1 upon omega c or 1 upon 2 pi fc. And look here, capacitance is inversely depend on fc. Xc is inversely proportional to f. Okay, means if our supply having a frequency component or harmonic component, then of course capacitor behaves variably, like frequency increases then capacitance decreases, when frequency decreases capacitance increases, because Xc is inversely proportional to frequencies. And in case of inductor, inductance XL is equal to 1 upon omega, inductor 1 omega XL is equal to omega L or 2 pi FL. So look at here, XL is directly proportional to frequencies, or frequencies of what? Frequencies of supply, our AC supply, because our supply having a harmonics of frequencies. So what we conclude from here,
when the supply having a higher frequencies, then inductance become high or higher, and when the supply having a low frequencies, our inductance is also becomes low, because inductance is directly proportional to frequencies. Okay, so okay, now we discuss about the notations. Notation with J. Okay, like R is written as R, but when we written about capacitance, Xc is notated as or written as minus J Xc, and what about XL is equal to plus J XL. Okay, what with the help of J, that is the notation of, that is the resistance, and these both are the impedance. We call it as a impedance, means minus J means 90 degree clockwise, plus J means 90 degree anti-clockwise. And what is this clockwise and anti-clockwise? These are the phasor diagram. Like, means when in our impedance there is a Xc or XL, or means capacitance or inductance, then we have a magnitude and phase also. We have a magnitude and phase also. देखो, लाइक हम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेट मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक, और कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो हम इसको हम मान लो 3 फैराड में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3J। तो देखो इसका नोटेशन कैसे होगा, J मीन्स ये होता है J, ये माइनस J, ठीक है ना, और दैट इज़ द रियल एक्सिस जहाँ पे हम रेजिस्टेंस को करेंगे। 2 हमने यहाँ गए और 3 यहाँ पे गए, तो यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम 2 माइनस 3J का, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट 13। एंड व्हाट इज द फेज, tan theta is equal to what, perpendicular upon base। perpendicular क्या है, माइनस, वेट, दिस इज -2, दिस इज नॉट 2 माइनस 3J, 2 दैट इज द ना -3, दैट इज इसका ये होगा, ठीक, ये क्या है 2 माइनस 3J, ये तो होगा 2 प्लस 3J। ओके, ये क्या होगा, ये होगा 2 प्लस 3J, और ये किसके लिए होगा, ये इंडक्टर के लिए होगा। व्हेन 2 ओम प्लस 3 हेनरी दिया हो, ठीक, ये 2 प्लस 3J यहाँ पर होगा और 2 माइनस 3J यहाँ पर होगा। तो लाइक कितना है, देखो थीटा निकालना है इसके लिए हमें, तो क्या होगा, माइनस परपेंडिकुलर क्या है, -3 है, -3, एंड ये क्या है /2, तो tan थीटा -3/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3/2 और माइनस tan इनवर्स 3/2, मतलब थीटा इज नेगेटिव फॉर कैपेसिटेंस, फॉर और कैपेसिटर।
and same here, if we calculate for the inductor, of course there is a positive 3/2, then it is positive, so theta is positive for inductor. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं. इसको दो नोटेशन से डिफाइन करते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म से भी एंड पोलर फॉर्म से भी. दो हम फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं. रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने भी देखा 2 + 3j और 2 - 3j, ये हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है. मतलब इसमें हमें पता है इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और फेज भी है. मैग्नीट्यूड है और फेज है, अब हमने अभी निकाला था. लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड और फेज में डायरेक्टली अगर हम इसको नोटेट करें तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम पोलर फॉर्म. लाइक यहाँ पे अगर हम लिख दें एक इम्पिडेंस, मतलब जेड इम्पिडेंस हो जाए, और ये देखो थीटा, मतलब ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा फेज. जैसे हम इसको थोड़ा लिखते हैं, मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 2j, ठीक, 2 + 2j लिखा हुआ, तो इससे ये मालूम हो गया ना, ये क्या है, r है, और ये 2 क्या है, xl है, क्योंकि बीच में प्लस है, ऑब्वियसली xl होगा. ठीक है ना. तो अब इसमें देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया √2² + 2² = √8 या 2 √2. ठीक. एंड फेज क्या होगा, देखो tan θ = 2/2 1, तो थीटा = tan 1 और थीटा = tan 1, एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan से tan स्केल, थीटा = 45. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2 √2 और 45. ठीक है ना, 2 √2 और 45 लिख सकते हैं. इसी तरह अगर यहाँ पे 2 - 2j लिखा होता तो ऑब्वियसली ये क्या है, r है, और ये क्या है हमारा xc है, क्योंकि ये है ना xc है ना, कैपेसिटेंस है, क्योंकि बीच में माइनस है, हमें पहले मालूम चाहिए पड़ जाएगा ये कैपेसिटेंस है. तो देखो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, 2 √2 ही आएगा, लेकिन हमारा एंगल क्या हो जाएगा, -45 है ना. इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और इसमें क्या है, निगेटिव है. तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलर फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है. ठीक है ना. तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म से. ओके, तो चलिए अब आते हैं अपने एसी ब्रिजेस पे. देखो अब ये एसी ब्रिजेस है, ये पहले हमारा एक बेसिक सर्किट है एसी ब्रिजेस का, है ना. बेसिक सर्किट पहले समझते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन फिर वी गो फर्दर फॉर द डिस्कशन ऑफ some special AC circuits by which we can calculate our resistance, or sorry, resistance, not a resistance, we calculate resistance with the help of DC bridges, but we calculate impedance with the help of AC bridges. So okay, now we continued about AC bridges circuit. देखो what is written here, inductance, capacitance, Q factor of frequencies, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड Q, इसमें क्या दो, एंड Q फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडक्टर, ये सभी एसी ब्रिजेस द्वारा एक्यूरेटली मेजर किए जा सकते हैं. जो कैपेसिटर्स व इंडक्टर्स हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं उन्हें Q मीटर द्वारा बेहतर मेजर, मतलब जो अगर कैपेसिटर और इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं, मतलब अगर हमारी जो एसी सोर्स है वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स है, तो हम किससे मेज़र करेंगे, क्यू मीटर से मेज़र करेंगे, है ना. फिर ये एक स्पेशल केस हो जाएगा. फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज वी ऑलवेज यूज अ क्यू मीटर, अ टाइप ऑफ एसी ब्रिज. ओके, क्यू मीटर इज अ टाइप ऑफ एसी ब्रिज. ओके, वी कैन डिस्कस लेटर अबाउट दैट. सो उन्हें क्यू मीटर द्वारा बेहतर मेज़र किया जा सकता है. देखो ये हमारा सर्किट हमने डिज़ाइन किया, सेम एज अ व्हीट स्टोन ब्रिज, बट
वीट स्टोन बीच में क्या थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे थे, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इम्पिडेंस। ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ लिखा है Z1 Z2 Z3 Z4। अब हमें नहीं पता है कि ये फाइनली कैपेस मतलब इसमें इंडक्टर डोमिनेट में है कि कैपेसिटेंस इंडक्टेंस डोमिनेटिंग है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग है। तो हमने थीटा नॉर्मल लिखें यहाँ पे, इससे ये सिर्फ थीटा है, इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ठीक है ना। Z1 Z2 Z3 एंड Z4 ये हमने इंडक्टेंस ले लिए हैं। अब देखो क्या लिखो, जेड इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड है। जेड क्या है, हमने लिखा ना, जेड क्या है, मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, इम्पिडेंस का फेज है, जो भी फाइनली इम्पिडेंस होगा है ना उसका फेज है। और ये क्या है, जेड क्या है, इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड है। देखो अब हमें क्या, हमें अपनी कंडीशंस निकालनी है इन केस ऑफ एसी ब्रिजेस। तो हम कंडीशंस निकालने के लिए क्या कर देते थे, नल डिफ्लेक्शन करते थे कि हम ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जिसमें क्या हो, जो इस ए बी में है आई क्या हो, आई इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, मतलब करंट का फ्लो 0 हो जाए। डिफ्लेक्शन क्या हो, नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन ना हो। देखो नल कंडीशन में पॉइंट ए व बी पर वोल्टेज सेम होगी। ऑब्वियसली नल कंडीशन में ए और बी के बीच पोटेंशियल सेम होगी, तभी तो करंट का फ्लो ए टू बी या बी टू ए नहीं होगा। ठीक है ना, इसी तभी तो ये इसमें इस ब्रांच में करंट का फ्लो नहीं होगा। देन ऑफ कोर्स अब हम क्या कह सकते हैं, देखो दो चीज़, इनके बीच का मतलब इसके बीच का पोटेंशियल इक्वल टू इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल इक्वल टू इसके बीच का पोटेंशियल। या फिर हम इसमें भी अपने क्या लगा सकते हैं, इसमें भी हम लगा दें केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसमें दो हमारी ब्रांचेस हैं, इन दोनों में हम क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा आई आया, यहाँ से फिर I1 और ये फिर क्या हो गया I2। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड हो गया। तो देखो I1 आएगा, I1, और यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसलिए आई तो यहाँ जाएगा नहीं, तो यहाँ भी I1 आएगा और यहाँ भी I2 आएगा। तो देखो नल कंडीशन में पॉइंट ए व बी पर वोल्टेज सेम है। ठीक है, सो देखो ये रहा, इस इम्पिडेंस के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू इस इम्पिडेंस के अक्रॉस वोल्टेज। देखो I1 Z1, तो ये इम्पिडेंस क्या है, Z1 मैग्नीट्यूड और फेज थीटा1 इक्वल टू I2, और Z2 क्या है, मैग्नीट्यूड और थीटा2 फेज। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड वाला देखो, इसमें हमने लगाया क्या, KVL। तो देखो अगर हम एक साथ इक्वेशन लिखे, अगर KVL से लिखना चाहें, देखो हम अगर यहाँ से हमने लिया इसकी डायरेक्शन, देखो ये क्या है, ये तो इसी की डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा I1 Z3 और थीटा3। अब देखो ये तो क्या है, I2 इसके रिवर्स में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस I2 Z4 थीटा4 इक्वल टू 0। फिर क्या आ जाएगा, I1 Z3 थीटा3 इक्वल टू I2 Z4 थीटा4, है ना, ये आ जाएगा। देखो यही तो यहाँ पर आ गया है, इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज। देखो I1 Z3 थीटा3 इक्वल टू I2 Z4 थीटा4। ठीक है ना, ये हमारी दो इक्वेशन निकल आई। तो हमने क्या किया, वन को क्या किया, सेकंड से डिवाइड कर दिया, Z1 अपॉन Z3 Z1 अपॉन Z3। तो हमारा ये फाइनली ये क्या है, Z1 अपॉन Z3 थीटा1 थीटा इक्वल टू Z2 अपॉन Z4। फिर हमने जो क्या किया है, इस थीटा को क्या किया है, ऊपर ले गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी अगर प्लस था तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, Z1 अपॉन Z3 थीटा1 माइनस थीटा3 इक्वल टू Z2 अपॉन Z4 थीटा2 माइनस थीटा4। अतः बैलेंस के लिए दो इक्वेशन होगी, कौन कौन सी। अब देखो यहाँ ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये है फेस। फाइनली क्या है हमारा, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, फेस। ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये फेस। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सेम होना है, तो मैग्नीट्यूड को आपस में सेम होना होगा, ठीक है ना, और फेज को आपस में सेम होना होगा। तो हमारी दो कंडीशंस निकलेंगी, कौन सी, Z1 अपॉन Z3 इक्वल टू Z2 अपॉन Z4 एंड थीटा1 माइनस थीटा3 इक्वल टू थीटा2 माइनस थीटा4। फिर हमने क्या किया, थीटा1 और थीटा4 को यहाँ लगे, थीटा1 प्लस थीटा4 इक्वल टू थीटा2 प्लस थीटा3, है ना। देखो इसमें ये कैसे, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ये तो लिख सकते हैं। देखो थीटा1 Z1 इंटू Z4 थीटा1 प्लस थीटा4, Z2 इंटू Z3 थीटा2
प्लस थीटा 3, क्योंकि देखो अगर मैग्नीट्यूड का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो थीटा क्या होंगे, थीटा दोनों के ऐड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डिवाइड था ना, तो देखो थीटा क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे, इस तरह अगर मल्टीप्लाई होगा तो थीटा क्या होंगे, प्लस होंगे। तो कंडीशन दोनों के लिए सेम है, 1 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3, 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3। देखो 1 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 है, और फेज में 1 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 है। ये तो अब हमारा ये क्या था, देखो ये हमारा क्या था, ये पोलर फॉर्म में था। हमने जो कैलकुलेशन किया है ये किस में किया है, पोलर फॉर्म में किया है। लेकिन हम अब लेकिन जब मेनली कैलकुलेशन करेंगे वो किस में करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में करेंगे। और रेक्टेंगुलर में देखो क्या होता है, फेज और मैग्नीट्यूड दोनों मिक्स होते हैं ना, अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें तो फेज और मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं, हमें दिख जाते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है और फेज क्या है। बट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म जे की फॉर्म में होता है, पहली बात तो है ना, जे की फॉर्म में होता है। उसी में क्या होता है, हमें मैग्नीट्यूड और फेज क्या होते हैं, दोनों ही मिक्स होते हैं, है ना, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। देखो फेज एंगल इंडक्टिव इंपिडेंस के लिए पॉजिटिव होगा, ये हम अभी समझ चुके हैं। फेज एंगल इंडक्टिव इंपिडेंस के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वह कैपेसिटिव इंपिडेंस के लिए नेगेटिव होते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में गणनाएं करके देखें कि देखते हैं कि ब्रिजेस की बैलेंस कंडीशन क्या प्राप्त होती है। देखो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स z1 इक्वल टू, ये सपोज किया z1 इक्वल टू r1 प्लस जे x1, ठीक, z2 इक्वल टू r2 प्लस जे x2, z3 इक्वल टू r3 प्लस जे x3 एंड z4 इक्वल टू r4 प्लस जे x4। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर R1 R2 R3 तो क्या हमारे रेजिस्टेंस है, लेकिन ये J के बाद जो X1 X2 X3 X4 है ना तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये कैपेसिटेंस है और ना ही मालूम पड़ता है कि ये इंडक्टेंस है। लाइक देखो X1 इक्वल टू ऐसा भी हो सकता है XC माइनस XL, ठीक, और ये और XC माइनस XL क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ठीक है, अभी तो इस हमें ये क्या है, कैपेसिटेंस है कि इंडक्टेंस है, ऐसा हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें इतना देखना है कि ठीक है ना, हमें ऐसा कुछ अभी नहीं देखना है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। अभी ना XL लिखा हुआ ना XC लिखा हुआ है, X1 X2 X3 X4 लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। XC माइनस XL और XL माइनस XC पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। जस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग इम्पिडेंस हमने यहाँ पर लिख दिया है X1 X2 X3 X4। ओके, तो ओके, फॉर ब्रिज कंडीशन हमें, फॉर ब्रिज बैलेंस के लिए हमने कंडीशन निकाली है। देखो Z1 अपॉन Z3 इक्वल टू Z2 अपॉन Z4, तो बस हमने यही कंडीशन या Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3 ये कंडीशन में निकाली थी। तो हमने Z1 की जगह रख दिया R1 प्लस JX1 और Z4 की जगह R4 प्लस JX4, Z2 की जगह R2 प्लस JX2 और Z3 की जगह R3 प्लस JX3। देखो फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया इनका, R1 R4 है ना, लाइक दैट। देखो फिर R1 R4 और X1 X4 प्लस J R1 X3 और प्लस X1 R4 R2 R3 माइनस X2 X3 और J, मतलब J वाले हमने विदाउट J वाले अलग कर लिए हैं और J वाले अलग, दोनों साइड में ही, ताकि क्योंकि हम क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, ठीक है ना, आपस में J वालों का अलग, जो कंपोनेंट J वाले हैं उनका अलग कंपैरिजन कर सकें और जो हमारे विदाउट J वाले हैं उनका कंपैरिजन अलग कर सकें, ठीक है ना। ये अब ये क्या होगी, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी जिसमें रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट है। J वाला कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और विदाउट J वाला एक हमारा रियल पार्ट होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है और तो ये सेटिस्फाई होगी जब इसके दोनों साइड्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग इक्वल होंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग इक्वल होने चाहिए। अतः बैलेंस के लिए क्या होगा, R1 R4 माइनस X1 X4 इक्वल टू R2 R3 माइनस X2 X3, ये कौन से है, रियल वाले हैं, इन दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। और फिर इमेजिनरी वालों को R1 X3 प्लस X1 R4 इक्वल टू X2 R3 प्लस R2 X3। देखो ना, ये रियल वाले अलग हमने कर लिए इक्वल और ये इमेजिनरी वाले, ठीक है ना। अब हमें ऐसे ही करना पड़ेगा सब में, पहले उसके हम रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके रियल पार्ट्स को अलग इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग इक्वल करके हम अपनी फाइनल नल डिफ्लेक्शन की कंडीशंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अतः ब्रिज के लिए इस स्थिति में भी दो इक्वेशन प्राप्त होंगी तथा ब्रिज बैलेंस के लिए इन दोनों का सेटिस्फाई होना आवश्यक है। आगे जितनी भी ब्रिजेस यानी ऐसी ब्रिजेस का हम
विश्लेषण करेंगे किया गया है। इम्पिडेंस को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लेकर 2 इक्वेशंस फाइंड की गई तथा उन्हीं से बैलेंस कंडीशन प्राप्त की गई। देखो ना, ये क्या था आपका बेसिक पूरा सर्किट था। हम आगे अब इसी तरीके से क्या करेंगे, सारे ब्रिजेस को का नल डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे, राइट, बिकॉज वी वांट टू क्या मेजर और कैलकुलेट द इम्पिडेंस। भाई हमें अब आगे हमें कैपेसिटेंस भी निकालना पड़ेगा। हम जो हमारे पास वेरिएबल मतलब अननोन कैपेसिटेंस या अननोन इंडक्टेंस है, ये तो कैलकुलेट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एसी सोर्स या विद द हेल्प ऑफ एसी ब्रिजेस। ठीक है, ओके, थैंक यू।